हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी तक हमने चैप्टर 7 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था। तो आज हम आगे शुरू करेंगे 31 से। तो अपनी नोटबुक निकालो और मेरे साथ करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। क्वेश्चन कंफर्म कर लेते एक बार। sin 2x tan इनवर्स, ओके, डन। सो नाउ इंटीग्रेशन I इक्वल टू 0 to π/2 sin 2x इक्वल टू व्हाट, 2 sin x cos x इंटू tan इनवर्स sin x dx। और क्या करेंगे आगे, सबको पता है आपको कि साइन और कॉस फ्रेंड्स पेयर। तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे sin x इक्वल टू टी, देयरफॉर cos x dx इक्वल टू dt एंड 2 टाइम्स, नाउ चेंज द लिमिट, sin 0 0, sin 90 1, sin x इक्वल टू t, cos x dx इक्वल टू dt and it is tan inverse t। Understood? Okay, now integration by part. Solve this integration by part uv. So formula u as it is, integration of v minus derivative of u, integration of v, t square by 2 dt 0 to 1 equal to 2 times tan inverse t into t square by 2 minus 1 by 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे याद करो। तो दोनों की पावर सेम है, ऊपर नीचे। ऊपर की पावर ज़्यादा हो या इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। अदरवाइज शॉर्टकट सिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दो, यहाँ जो भी है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये होगा यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे 0 to 1, which is equal to 2 times as it is, in short 2 times as it is, t square into tan inverse t by 2 minus, cancel, t square plus 1 cancel and 1 upon 1 plus t square, minus minus plus, so minus 1 by 2 and minus minus plus, minus 1 by 2 dt plus 1 by 2. I think we should write in another line. So minus minus plus and plus 1/2 dt upon t square plus 1. So this equal to 2 times is open the bracket by 2. So it is t square tan inverse t minus integration of t, integration of 1 which is t, 2 cancel and dt upon t square plus 1, it is the formula, dt upon t square plus 1 is the formula, plus tan inverse t 0 to 1, upper limit minus lower limit, t square 1 and tan inverse 1 which is pi by 4 minus 1 plus pi by 4, upper limit minus lower limit 0 0 0 minus, it is whole 0, so which is equal to pi by 4 plus pi by 4, pi by 2 minus 1, it is the answer. Understood? Write down. Question number 32, इंटीग्रेशन 0 to pi
x tan x upon sec x plus tan x dx. In this type of question, we have to convert in sin cos form. So it is 0 to pi x. Tan x means sin x upon cos x. 1 upon cos is cancelled. That is final is x sin x upon 1 plus sin x. Now replacing x by pi minus x. Integration 0 to pi minus x sin pi minus x upon 1 plus sin pi minus x. यहाँ तक clear? Okay. So now open the bracket, pi minus x into, okay. Now first of all simplify. Sin pi minus x, second quadrant, sin positive. Now open the bracket. It is pi sin x minus x sin x and dividing by 1 plus sin x. Integration 0 to pi. So now this is the what? This is our I. See here, it is our I. So I equal to something minus I. Therefore, I equal to pi 0 to pi sin x upon 1 plus sin x dx minus I. So 2i equal to pi into 0 to pi sin x upon 1 plus sin x. क्या करेंगे? हाँ, तो मैंने आपको सिखाया था, याद करो. नीचे 1 प्लस साइन एक्स हो, 1 प्लस कॉस एक्स हो और ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्म हो, तो ऑलवेज टेकिंग कॉन्जुगेट. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन एक्स, ऑलवेज टेकिंग कॉन्जुगेट. Now open the bracket, sin x minus sin square x dividing by 1 minus cos square x, 1 minus sin square x, which is equal to cos square x. Okay, so now 0 to pi, taking separate sin x upon cos square x, which is equal to tan x sec x, and sin square upon cos square, which is equal to tan square x. So now इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर, वो कैसे करेंगे? याद करो, tan स्क्वायर क्या सिखाया था मैंने? 4 स्क्वायर. क्लियर? 4 स्क्वायर अप्लाई करो तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. सो फाइनल आंसर इज, फाइनल इंटीग्रेशन इज tan x sec x, विच इज इक्वल टू sec x माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस माइनस प्लस x 0 to pi, एंड नाउ अपर लिमिट sec pi minus 1 tan pi 0 pi, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sec 0 1 tan 0 0 x equal to 0. So this equal to what? 2i. So 2i equal to this. So I equal to what? 1 by 2 means pi by 2 into bracket. This is pi minus 1, pi minus 2. So it is our answer. Understood? Okay, write down. Question number 33. Question number 33. Watch modulus video. (7.11) पार्ट 2. ये वीडियो मैंने किया हुआ है, 7.11 पार्ट 2 का वीडियो, मॉड्यूलस वाला वीडियो आप देख लो, उसमें पूरा सब मैंने सॉल्व किया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34.
क्वेश्चन नंबर 34 इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन x square into x plus 1. Limit is wrong. 1 2 3 1 2 3. So now x square upon x plus 1. For this, applying 7.5 part 2 video, it is a upon x, b upon x square and c upon x plus 1. Now cross multiply means multiply here. So 1 equal to a into x, x plus 1, b into x plus 1 and c into x square, which is equal to a plus c x square. Simplify this. फिर x टर्म साथ में ले लो, तो इट इज ए एक्स बी एक्स एंड प्लस रिमेनिंग इज व्हाट बी, रिमेनिंग इज बी. सो इन अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड इट इज व्हाट 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1. सो 0 इक्वल टू a plus c, 0 equal to a plus b or 1 equal to b. Comparison, comparing the coefficient, putting b here, so a equal to minus 1, putting a here, so c equal to 1. Okay, so final integration I equal to integration 1 2 3 a upon x plus b means 1 upon x square and c means 1 upon x plus 1 dx. यहाँ तक क्लियर. ये 7.5 की मेथड ही है, कुछ नया नहीं है. और सीधा इंटीग्रेशन यहीं कर देते. चलो तो इसका इंटीग्रेशन करो. इट इज़ माइनस लॉग मोड x रेस टू माइनस 2, x रेस टू माइनस 2 मतलब x रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 विच इज़ माइनस 1 बाई एक्स. ओके, एंड 1 अपॉन x प्लस 1 लॉग मोड x प्लस 1 1 2 3. So now putting upper limit and lower limit. So replacing x by 3. So which is equal to minus log 3 minus 1 by 3 plus log 4. Upper limit minus lower limit. Putting x by 1, log 1 0 minus 1 and plus log 2. Log 4 minus log 3 which is equal to log 4 by 3 minus 1/3 plus 1 minus log 2. Again log x minus log y, log x by y, so which is equal to log 4 by 3 by 2 and it is 1 minus 1 by 3, 2 by 3. So final answer is what? 2 by 3 plus log 2 by 3. ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन. इजी क्वेश्चन है, लिख लो. क्वेश्चन नंबर 35 यहीं पे कर देते हैं. इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स. आपको क्लिक होगी शायद क्वेश्चन देख के कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, UV अप्लाई करेंगे, पर उससे भी एक शॉर्टकट मेथड मेरे पास है. देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व. 0 to 1 ई रेस टू एक्स सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग 1. तो देखो x माइनस 1 का डेरिवेटिव बाजू में आ गया. तो ऐसी फॉर्मूला थी 7.6 में ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स होगा. सीधा हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1. एंड नाउ रिप्लेसिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुटिंग x इक्वल टू 1 तो ये हो गया 0 एंड पुटिंग x इक्वल टू 0 ई रेस टू 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1
तो फाइनल आंसर इज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके। नेक्स्ट 36 इंटीग्रेशन -1 to 1 x raised to 17 cos raised to 4x dx, x raised to 17 cos raised to 4x dx। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? 7.11 सिखाया था मैंने, उसके अंदर मैंने थियरम्स लिखे थे स्टार्टिंग में, तो उसमें से एक थियरम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे लिमिट के -1 से 1 मतलब -a to a है। तो सबसे पहले जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है f(x), वो चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है। तो वो कैसे चेक करते हैं? तो रिप्लेसिंग x बाय -x विच इज़ -x raised to 17 cos raised to 4 of -x, इट इज़ -x raised to 17 cos इज एन इवन फंक्शन, युग्म विधेय। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन बाहर आ गया, इसका मतलब ऐसा हुआ सिर्फ माइनस साइन बाहर आ गया। तो ये पोर्शन पूरा क्या है? ये जो पोर्शन है पूरा f(x) है हमारा, इट इज़ -f(x). तो अगर f of -x इक्वल टू -f(x) आ गया, मतलब फंक्शन में से माइनस साइन बाहर निकल गई, तो इसको बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 0। थियरम है, तो आंसर इज 0। ऐसा एक क्वेश्चन है 7.11 में, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 7.11 में ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है पीछे। 7.11 क्वेश्चन नंबर 20, 7.11 20 नंबर का MCQ। उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? -π/2 to π/2 I इक्वल टू -π/2 to π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन तो हम करेंगे नहीं 10⁵x और x cos x का। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये फंक्शन, ये वाला पार्ट, ये तो कांस्टेंट है 1, तो मैं इसकी बात करता हूँ f(x) इक्वल टू x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x। रिप्लेसिंग x बाय -x, तो क्या होगा? f of -x इक्वल टू -x³ प्लस ऑफ -x cos ऑफ -x प्लस 10⁵ -x³ इक्वल टू व्हाट? -x³। कॉस इवन फंक्शन है तो माइनस साइन को खा जाएगा, पर ही माइनस आगे आ जाएगा। और यहाँ पे -10⁵x। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस अब तो देखो सिंपल, यहाँ सब में से माइनस कॉमन निकालो। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या होगा? x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x, और ये हो गया हमारा -f(x), मतलब फंक्शन f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन। सो इसका मतलब ऐसा हुआ इंटीग्रेशन I इक्वल टू -π/2 to π/2 फर्स्ट पार्ट x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x dx प्लस -π/2 to π/2 1 dx। तो ये फंक्शन हमारा ऑड हो गया, ये जो है यहाँ पे ऑड फंक्शन है। तो मतलब ये हो गया पहला पार्ट 0, फर्स्ट पार्ट इज 0, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू x -π/2 to π/2, अपर लिमिट माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट यहाँ पे से π/2 प्लस π/2। सो हमारा इंटीग्रेशन हो गया I इक्वल टू π। क्लियर? तो ये दोनों सम सेम टाइप के, इसलिए मैंने 7.11 का क्वेश्चन 20 यहाँ पे लिया। ओके, चलो राइट डाउन, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 तीनों क्वेश्चन रिपीट हुए, पहले आ चुके हैं। sin³ x मैं यहाँ पे देता हूँ सब में हिंट।
क्वेश्चन नंबर 37, मेरा 7.3 का वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर को लिख लो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, एंड देन सपोज कॉस एक्स इक्वल टू टी। आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे करो, 38 में 10 क्यूब एक्स है। 10 क्यूब एक्स को करेंगे हम यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x। 10 स्क्वायर को लिखेंगे हम यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो विच इज़ इक्वल टू 10x सेक्स स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में ये, और यहाँ पे आएगा 10x। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, सीधी फॉर्मूला, और यहाँ पे ले लो t, तो ये बाजू में हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा t dt, और यहाँ पे तो सीधी फॉर्मूला ही है। आ गया आपका आंसर। वैसे तो मैंने पूरा सम ही कर दिया, कोई बात नहीं। और साइन इनवर्स एक्स 39, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हमारा 7.6 का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इनवर्स फंक्शन जब भी अकेला हो तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे इसको लेंगे u और 1 को लेंगे v। सो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, इसको लेंगे u और 1 को ले लेंगे v। और मैंने सिखाया दूसरा, x इक्वल टू सपोज कर लो साइन अल्फ़ा, तो भी हो जाएगा ये मेथड और ये दूसरी मेथड। यहाँ से करेंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा, और dx का वैल्यू क्या होगा, कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। dx का वैल्यू हो गया कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। क्लियर? तो आप u v यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, u v, तो आप यहाँ से u v कर दो, दोनों में से कोई भी मेथड करो, आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तो ये हमारा 7.8 वाला सम है। 7.8 का वीडियो देख लो तो आपको मेथड मिल जाएगी। तो भी ये सब मैं पूरा यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे fx मेरे पास क्या है, e⁻² माइनस 3x है। h इक्वल टू क्या होगा, b माइनस a/n, सो h इक्वल टू 1/n हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। तो फॉर्मूला क्या था, याद करो, इंटीग्रेट। पहले उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए, f ऑफ a प्लस आई एच चाहिए, f ऑफ a प्लस आई एच, मतलब ज़ीरो यहाँ पे है, a की वैल्यू, a होता है लोअर लिमिट, b होता है अपर लिमिट। सो f ऑफ 0 मतलब e⁻² माइनस 3i(h), तो हमारा फंक्शन हो गया ये f ऑफ a प्लस आई एच। और फॉर्मूला से करते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻² माइनस 3x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आई एच। ये थी हमारी फॉर्मूला। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n e⁻² माइनस 3i(h)। तो इसको हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ व्हाट, स्क्वायर इंटू e⁻² माइनस 3i(h)। क्लियर? तो ये स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। सो विच इज़ इक्वल टू लिमिट, तो ई स्क्वायर बाहर निकाल दो, पहले ई स्क्वायर बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n e⁻² माइनस 3i(h)। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। एक बार वीडियो पॉज कर दो, ध्यान से समझ लो, उसके बाद शुरू करते आगे। सो नाउ ई स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 डालो पहले, तो क्या होगा, माइनस 3h। सिग्मा का मतलब होता है प्लस,
आई इक्वल टू रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा -6h प्लस -9h और प्लस 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 e रेस टू -3nh। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये क्या है पूरी जीपी की फॉर्मूला क्या थी याद करो। जीपी का सम क्या था हमारे पास, वो थी फॉर्मूला SN इक्वल टू A इंटू R⁻n -1 अपॉन R-1। तो यहाँ पे मेरे पास जो सम है उसके अंदर ये क्या है, ये मीन्स फर्स्ट टर्म और रेशियो R सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो वो भी क्या होगा मेरे पास e⁻³ होगा। सो नाउ रिप्लेसिंग दिस वैल्यू हियर, तो हमारा होगा यहाँ पे e² लिमिट h टेंड्स टू 0 a मतलब e⁻³ R⁻n e⁻³ डिवाइडिंग बाय e⁻³ यहाँ तक क्लियर हो गया बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब NH का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो ये रहा, तो यहाँ से निकालो NH का वैल्यू, तो NH का वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 है, तो ये क्या होगा NH होगा, NH तो यहाँ रख देंगे 1। सो नेक्स्ट टर्म में e² लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आगे h रह गया, ये रहा, यहाँ पे लिखता हूँ, ये रहा यहाँ पे h। सो h अपॉन e⁻³ इंटू पुटिंग h इक्वल टू 0 हियर, तो e⁻0 विच इज़ 1, ये हो गया हमारा 1, इंटू हो गया ये 1 और इंटू e⁻NH का वैल्यू 1 है, सो ये हो जाएगा e⁻3। सो दिस इक्वल टू e⁻3 -1। इतना बचा। अब याद करो फॉर्मूला क्या थी हमारी दूसरी, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अगर मेरे पास e⁻NH -1, तो यहाँ पे कंपलसरी क्या चाहिए मुझे, NH चाहिए, तो क्या करेंगे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा n इंटू log A n log A हो जाएगा, n मतलब आगे है वो। तो सेम वे यहाँ पे देखूँ मैं, तो e⁻3h -1, तो मैं क्या करूँगा -3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय -3 मैंने कर दिया। तो ध्यान से देखो अभी ये जो पूरा फॉर्म है ये हमारा ये फॉर्म हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 1 अपॉन के फॉर्म में, मतलब -e² इंटू 1 अपॉन हो जाएगा log e, n तो बाहर निकाल दिया, ये रहा हमारा n, और इंटू ये क्या e⁻3 -1 है। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ log e क्या होता है 1, log e की वैल्यू 1, ओपन द ब्रैकेट बाय -e², सो ये हो जाएगा यहाँ पे -e⁻1 और माइनस प्लस e² बाय 3, फाइनल आंसर इज e² -e⁻1 बाय 3। ऐसे रखो, अदरवाइज इसको एलसीएम ले लो, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, e³ -1/3e। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? सो लिख लो ध्यान से, एमसीक्यू नंबर 41, बहुत इजी एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 41, dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻x। सिंप्लीफाई दिस, तो ये होगा हमारा फाइनल, ये मिलेगा, और e⁻x इक्वल टू सपोज कर लो t, आ गया आंसर। सो यहाँ पे dx, सो e⁻x dx इक्वल टू dt, सो इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस 1, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या है e⁻x, तो आ गया आंसर। ऑप्शन ए इज़ द आंसर, विच इज़ ऑप्शन है। बहुत इजी एमसीक्यूज है। 42 नंबर,
कॉस 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये सम रिपीट हुआ, ये सम भी पहले आ चुका था। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। कॉस 2x को करेंगे हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसको फैक्टराइज करो तो कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन डिवाइडिंग बाय कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर डी एक्स। एक कॉस प्लस साइन कैंसिल, तो कॉस माइनस साइन मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। और मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, पहली मेथड आपको शॉर्टकट के बिना पहली मेथड, इसको सपोज कर लो टी तो ऊपर मिल जाएगा। और शॉर्टकट क्या था, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, साइन का कॉस कॉस का माइनस इन, हाँ तो इसका आंसर होगा लॉग मोड डिनोमिनेटर, तो लॉग मोड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो वो हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी इज द आंसर इसके अंदर। क्लियर? ओके। नाउ 43 इज द मोस्ट IMP क्वेश्चन। 43 वैसे तो हम थियरम के बेस के ऊपर है, 7.11 वाला क्वेश्चन है। चलो 43 नंबर करते हैं। 43 में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ए टू बी, वी हैव टू फाइंड ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो 7.11 में क्या करते हैं, स्टार्टिंग रिप्लेसिंग एक्स बाय, वही करेंगे यहाँ पे, रिप्लेसिंग एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। 7.11 वाला स्टार्टिंग, तो इट इज़ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। पर ये क्या है हमारा, एफ एक्स दिया हुआ है, देखो ध्यान से। सो इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स, इट इज़ एफ एक्स, इट इज़ गिवन। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये कांस्टेंट है तो उसको साथ में रखो, ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एक्स, पहले ये और उसके साथ सेकेंड टर्म में ये एक्स एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वापस आ गया आई, ये हो गया हमारा आई। सो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई सामने ले जाओ तो क्या होगा 2i इक्वल टू ए प्लस बी, तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सो फाइनल आंसर आई इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज फाइनल आंसर। देखो ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन हमारा डी, ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? राइट डाउन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x into x minus 1, सॉरी tan इनवर्स 2x minus 1 अपॉन 1 plus x minus x square, 1 plus x minus x square dx। हाँ, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। 0 to 1 tan inverse, now we can write as 2x means x plus x, 2x होगा x plus x, और यहाँ से कॉमन निकाल दो x, तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स, मतलब मैं कॉमन निकाल दो माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर? ओके, तो ध्यान से देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, कौन सा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। हो गया 0 to 1 dx कर दूँ यहाँ पे, 0 to 1 dx और इंटीग्रेशन 0 to 1
dx। 2 tan इनवर्स हो गए। अभी हमने सीखा था साइन इनवर्स में क्या करेंगे, अगर ओनली इनवर्स फंक्शन है, मतलब इनवर्स फंक्शन अकेला है, तो हम अप्लाई करेंगे यूवी मेथड, पर इससे यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी और सिंप्लीफाई करते हैं ये सम को। तो इन सेकेंड पार्ट रिप्लेसिंग x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब रिप्लेसिंग x बाय 1 माइनस एक्स इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स रिप्लेसिंग x बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। सो 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स dx। और चैप्टर नंबर 2 tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। और यहाँ पे आगे मेरे पास क्या है 0 to 1 tan इनवर्स x ही है। देखो दोनों सेम हो गए, मतलब दोनों कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 0। सो इंटीग्रेशन मुझे मिल गया यहाँ पे 0। तो ये सम कितना इजी हो गया सिर्फ ये फॉर्मूला से। अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखो, 7.11 वाला ब्रह्मास्त्र बहुत काम में आएगा आपको। तो मैंने वही यहाँ पे अप्लाई किया है। अंडरस्टूड? तो हमारी पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे हो गई पूरी। आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी समझ में नहीं आता हो इंटीग्रेशन में, तो आप मुझे पूछो, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। बिकॉज द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। तो सभी सम्स 3-3 बार करो। क्लियर? चलो बाय बाय।